So last chapter we have introduced the concept of motion. We have started new chapter, that is motion in a plane. उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज मोशन. Then we saw what is rectilinear motion, change in position of object with time, and if the object moves along a straight line, then the motion is said to be rectilinear motion. Rectilinear motion के केस में position vector has only one coordinate. One coordinate मतलब only one component. For example, x I cap या फिर y j cap या फिर z k cap. अगर motion 2D में है तो position of the particle is changing with time and the object is moving in a plane. The object will have two components. Position vector के दो components होंगे, x I cap plus y j cap या फिर x I cap plus z k cap या फिर y j cap plus z k cap depending on the plane of motion. फिर हमने देखा था 3D motion. 3D motion के केस में position vector has three components, x I cap plus y j cap plus z k cap. इसके बाद हमने define किया था, if you remember, we have defined for a rectilinear motion, क्या डिफाइन किया था हमने? डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके दो अलग अलग पोजीशंस है एट टू डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. टाइम t1 पे पोजीशन इज x1, पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय x1 बार. क्योंकि पार्टिकल मोशन में है तो पोजीशन चेंज होगा विद टाइम. एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, t1 टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन था x1, t2 टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन था x2. So x1 was initial position vector and x2 was final position vector. Position vector हमेशा origin से start होता है और उस point के position पे खत्म होता है. So this is x1 bar and you have final position vector as x2 bar. So displacement define करने के लिए displacement was defined as the difference between final position vector and initial position vector. तो इसको हमने define किया था displacement. ये it has the unit of length, so L raised to 1, right? Dimensions of length, L raised to 1, unit is meter. And then we have defined, of course this is a vector quantity, हमको पता है ये vector quantity है. And इसके बाद हमने define किया था actual path length, that is distance covered, total distance covered. वो आपको example से better समझेगा. It is always better to understand the difference between path length and displacement with the help of example. So let us take an example. Suppose particle initially था, you can take any values as you want. Suppose particle initially था 2 मीटर पे, तो x1 बार आएगा 2 I cap meter. Initial position vector is 2 I cap. Then imagine the particle goes to 10. तो ये 10 पे आ गया, this is 10. And then particle goes back to let us say 6. तो अगर आप देखोगे तो फाइनल पोजीशन क्या है? 6 मीटर. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? 6 I cap. इनिशियल क्या था? 2 I cap. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x2 बार माइनस x1 बार, that is 6 I cap minus 2 I cap, that is 4 I cap. क्लियर? तो 4 आएगा. अगर आप डिस्टेंस कवर्ड की बात करोगे तो 2 to 10 is 8 माइनस, अभी माइनस में प्लस 10 से 6 पे आया, कितना कवर किया? और 4 होता है ना. 2 से 10 कितना डिफरेंस है? 8. तो हाउ मच डिस्टेंस? 8 मीटर. फिर बैक टू 6, 4, 8 plus 4 12. तो पाथ लेंथ कितना है? 12. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4. So path length is the actual distance covered by the particle during its motion. इसके बाद हमने speed define किया था. Speed is the ratio of distance covered to that of time during which the motion takes place. Speed, it is a scalar quantity. Units है meter per second. Dimensions है L1 t minus 1, right? Then there are 4 types of speed. Uniform speed, when a particle covers equal distances in equal intervals of time, it is said to have uniform speed. उसके बाद non-uniform speed, when the particle covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform speed. Average speed is the ratio of total distance upon total time.
एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू मुंबई 400 किलोमीटर, अगर 10 घंटे लग गए तो 400/10 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एवरेज स्पीड। उसके बाद उसके बाद after that we have defined something called as instantaneous speed. Instantaneous speed is the speed of a particle at a particular instant of time. गाड़ी चलाते चलाते सडनली हमारा स्पीडोमीटर पे ध्यान गया, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, उसको वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बताता है, वो हमको बताता है सिर्फ स्पीड। तो इफ आई एम राइडिंग अ व्हीकल एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरा स्पीडोमीटर पे ध्यान गया, स्पीडोमीटर इज शोइंग मी 40 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज माई स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उससे पहले के इंस्टेंट पे हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर था, हो सकता है 30 था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमारा यहाँ तक कल हुआ था। नाउ वी विल गो अहेड विद velocity, the concept of velocity। जैसे स्पीड आपने डिफाइन किया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड मतलब पाथ लेंथ बाय टाइम, velocity is the ratio of displacement to that of time। so the ratio of displacement, the ratio of displacement to that of time is known as velocity। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज व्हाई आपने यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड नहीं लिखा, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट। इसको और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। हर एक सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी। और द रेट ऑफ change of the rate of change of displacement with time is known as velocity, is known as velocity। तो इसके भी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीनिंग टू से इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होगा। अब बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस आर L1T-1, L1T-1। जैसे स्पीड में चार टाइप थे, इसमें भी चार टाइप है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रिमेंबर, एक छोटा सा डिफरेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड में आप बोलते हो when a particle covers equal distances in equal intervals of time, then the particle is said to be moving with uniform speed। यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करेगा। तो when a particle covers equal distances in equal intervals of time in a given direction, मतलब without change in direction। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो रहा था, तो वो कंटिन्यूअसली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव होगा, वो माइनस एक्स की तरफ भी नहीं आएगा। So the direction of motion should not change, direction of motion should be same। तो अगर ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं the particle is said to be moving with uniform velocity। तो सिर्फ यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड होंगे। तो when a particle covers equal distances in equal intervals of time, without change in direction, the particle is said to be moving with
moving with uniform velocity. Moving with uniform velocity. Okay. अब ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट लेने का कुछ रीजन होता है. रिमेंबर, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी बेसिक थिंग, लेकिन आज या कल आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि हम अभी तो फिलहाल थ्योरेटिकली बता रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, लेकिन बाद में हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मोशन को. तो ग्राफ देख के बताना पड़ेगा कि ये पार्टिकल का मोशन क्या है, whether it is uniform motion, it is non-uniform motion, if the particle is at rest, if the particle is accelerating, if the particle is deaccelerating, if the particle is going away from mean position to the right side, क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है. तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है. तो उस सब के लिए पहले ये बेसिक्स पता होना चाहिए. अनलेस यू नो दिस बेसिक आइडिया, जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगला टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आएगा. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो. तो जैसे वहां पे यूनिफॉर्म के बाद था नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, फॉर एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या था? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स unequal distances in equal intervals of time, the particle is said to have non-uniform speed. इस केस में if the particle has, or if the particle covers unequal distances in equal intervals of time, मतलब बेसिकली हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया. So the particle is covering unequal distances in equal intervals of time, right, without change in direction. फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड हैज चेंज्ड. इसको आप क्या बोलते हो? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 केसेस आते हैं. नंबर 1, पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. नंबर 2, particle covers equal distances in equal intervals of time, but this time direction of motion has changed, right? तो याद रखो, remember this, अच्छे से समझ लेना. पार्टिकल अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम with change in direction, for example, I am the particle performing motion, I am covering equal distances in equal interval of time, but क्या हुआ? पहले मैं जा रहा था towards positive x axis, then I change direction and I am moving now in negative x axis. तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अ पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट with a speed of 20 meter per second, right? Now it moves by 90 degree, rotates by 90 degree to the left, 90 degree to the left, north, and moves with same speed. मतलब स्पीड अभी भी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. पहले था 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, अभी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप. तो ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर स्पीड की बात करोगे तो यूनिफॉर्म है, अगर डिस्टेंस वेलोसिटी की बात करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है. और नॉन यूनिफॉर्म का और एक केस होता है, व्हेन पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड आल्सो द डायरेक्शन चेंजेस. तो पहले केस में सिर्फ अनइक्वल डिस्टेंस था, डायरेक्शन सेम था. दूसरे केस में इक्वल डिस्टेंसेस है, डायरेक्शन डिफरेंट है. तीसरे केस में दोनों ही डिफरेंट है. तो ये तीनों केसेस किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के. तो when a particle covers unequal distances in equal intervals of time, without change in direction,
then it is said to be moving with non-uniform velocity. तो मैं काम करता हूँ, और ये पहला केस हो गया, और when a particle covers equal distances in equal intervals of time, with change in direction, और अभी वो मैं लिखूंगा नहीं, और both particle covers unequal distances, also direction is changing, so that I will not write down. In such cases, the particle is said to be moving with non-uniform velocity. Simple, right? तीसरा केस था एवरेज का. जैसे एवरेज स्पीड था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी है. एवरेज स्पीड में आप बोलते हो इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. तो इट इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो यहाँ पे रेशियो में न्यूमरेटर भी वेक्टर. स्पीड था स्केलर तो वहां पे रेशियो में न्यूमरेटर था स्केलर. पाथ लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So the ratio, it is the ratio of displacement of the particle, okay, to that of time, during which the motion takes place. And if you remember, हमने जैसे एवरेज स्पीड को डिनोट किया था, याद होगा, एवरेज स्पीड V average इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा T. नोटेशन इज सेम, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर. तो V average बार इज डेल्टा S बार बाय डेल्टा T. अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो x2 बार माइनस x1 बार अपॉन T2 माइनस T1. एंड जस्ट टू टेल यू, मुझे अगर एग्जाम में गलती से भी टाइम के ऊपर वेक्टर दिखा, सब कुछ करेक्ट होगा, मैं 0 दे दूंगा. टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं, पुट अ वेक्टर. टाइम को वेक्टर बनाना मतलब यू कैन गो फॉरवर्ड इन टाइम, यू कैन गो बैकवर्ड इन टाइम. तो टाइम मशीन बना लोगे इन शॉर्ट. थ्योरेटिकली तो बन ही गया, राइट. तो रिमेंबर दिस इज स्केलर क्वांटिटी. तो टाइम कभी भी कहीं पे भी टाइम शुड नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी. देन लास्ट थिंग कौन सा? इंस्टेंटेनियस. अब जैसे स्पीड के केस में, इन केस ऑफ स्पीड आपने बोला था, डू यू रिमेंबर द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. वैसे ही वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाते चलाते सडनली मीटर पे ध्यान गया 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. बट अलॉन्ग विद दैट अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता है, राइट, सपोज हमको डायरेक्शन भी पता है कि वी आर मूविंग अलॉन्ग ईस्ट, तो वही 40 किलोमीटर पर आवर को आप बोलोगे 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर. आई कैप मतलब यू आर मूविंग टू द ईस्ट. अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो -40 आई कैप, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो +40 जे कैप, और अगर साउथ में जा रहे हो तो -40 जे कैप. तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसी को आप बोल दोगे इंस्टेंटेनियस
velocity. So it is the velocity of a particle. It is the velocity of a particle at a given instant of time. At a given instant of time. अब जैसे हमने इफ यू रिमेम्बर इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट किया था, क्या होगा, ds बाय dt, या फिर लिमिट ऑफ डेल्टा s बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स है, v बार इक्वल टू ds बार बाय dt, लिमिट ऑफ डेल्टा s बार बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको देगा स्पीड। यहाँ तक क्लियर। अब मोशन को और डिटेल में समझने के लिए पूरा लिंक बनना चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मोशन के डेफिनेशन से लेके तो एक्सेलरेशन तक एक पूरा लिंक होना चाहिए। सबसे पहले मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम, मतलब पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब पार्टिकल एक सेकंड में कितना पोजीशन चेंज करता है उसको बोलते हो वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन 1 second what is the change in position is nothing but velocity। अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल पहले पार्टिकल हर एक सेकंड में 2-2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो आपने बोला पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है along positive x-axis, आपने बोला the particle is having uniform velocity of 2 I cap meter per second। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल ने पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब इन दिस केस व्हाट इज चेंजिंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, तो उसके बाद था 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद था 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गया 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गया 50 मीटर पर सेकंड। ये मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका मोशन बता रहा हूँ। क्लास के बाद जैसे क्लास छूटेगा, तो दैट इज वाई मोशन को इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एक्सीलरेटर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटर, because that thing changes your velocity with time, इसलिए तो उसको बोलते हैं ना accelerator, right? So acceleration is the rate of change of velocity. Simple, we will keep it very simple. So next important and basic definition is acceleration. Define कैसे करोगे? The rate of change of velocity with time is known as acceleration। Rate of change of velocity with time is known as acceleration। Again property number 1, it is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज डायरेक्शन आल्सो। नंबर 2, SI यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस L1T-2। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, 4 टाइप्स थे वेलोसिटी और स्पीड के। इसके भी 4 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसके भी वही 4 टाइप्स है। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड आई रिपीट अगेन, ये सारा इतना बेसिक्स लेने का रीजन है, अभी अगले 15-20 मिनट में हमको ग्राफ देखने हैं। वी हैव टू स्टडी मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।
तो ग्राफ देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि आप जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन सब में a है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो वो जो इक्वेशन आए वो डिराइव ही हुए फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका ग्राफ कैसे दिखता है वी विल सी इन अ व्हाइल, देखेंगे हम लोग। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था इफ अ पार्टिकल covers unequal distances in equal intervals of time without change in direction, then the particle was said to have uniform velocity. Uniform acceleration, acceleration is rate of change of velocity, velocity is rate of change of displacement. तो यहाँ पे when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, टाइम इंटरवल इक्वल है, वेलोसिटी का चेंज भी इक्वल है, चेंज इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल नहीं है, वेलोसिटी का चेंज इक्वल है। फॉर एग्जांपल, अ पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड is changing its velocity at a rate of 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड, पांचवें सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकंड में कितना चेंज हुआ? 1। ऐसा भी हो सकता है पहले 0 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। ऐसा भी हो सकता है 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20। तो जब वेलोसिटी का चेंज हर एक सेकंड में इक्वल है, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो व्हेन द वेलोसिटी of a particle of an object of a particle changes by equal amounts, in equal intervals of time, then it is said to have uniform acceleration. Then it is said to have uniform acceleration. Now the clear? Second type is non-uniform acceleration. Now you can guess. Simple है अब definition. When the velocity of a particle changes by unequal amounts in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform acceleration. So when the velocity of a particle changes by unequal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be non-uniform. Then the acceleration is said to be non-uniform. Is that clear? Good. For example, पहले एक सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, अगले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, उसके अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, उसके अगले सेकंड में वापस 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया। तो हर एक टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम। देन एवरेज, अब एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। आपने इन जनरल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, राइट? तो वही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। सिर्फ यहाँ पे ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस
सिर्फ इतना ही एक डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का जनरल डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो जनरल डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर आपको एवरेज बोलना है तो एवरेज के केस में हमको टोटल टाइम ऑफ मोशन देखना पड़ता है, टोटल टाइम ऑफ मोशन देखना पड़ता है। रिमेम्बर, हो सकता है ना कि पार्टिकल अभी रेस्ट पे है, 1 आवर के बाद वो मोशन स्टार्ट करेगा, तो जब से मोशन स्टार्ट करेगा जब तक मोशन में रहेगा उतना ही टाइम देखना है हमको। अभी से मोशन मोशन नहीं है तो अभी से हम मेजरमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, वो बाद में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी इतना पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन takes place, during which the motion takes place is known as average acceleration, is known as average acceleration. इसको और सिंप्लीफाई करना है तो अनदर एग्जांपल, लेट अस से पार्टिकल पहले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ईस्ट में मूव हो रहा था, मतलब आई कैप, वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। 60 मिनट्स के बाद, मतलब आफ्टर 1 आवर it is still moving in the same direction, but this time the velocity is, let us say, 100 meter per second. What is final velocity? 100 I cap. What is initial velocity? 2 I cap. So what is change in velocity? 98 I cap divided by time. Time कितना है? 1 hour. 1 hour मतलब 60 minutes. Each minute has 60 seconds. मतलब 3600 seconds. So 98 by 3600 seconds, right? So velocity upon time. So this much is the average acceleration. मतलब आपने सीधा सीधा अभी मेजर किया, फिर 1 घंटे के बाद मेजर किया, बीच में वी हैव नॉट मेजर्ड वेलोसिटी एट ऑल। तो बीच में भी तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा ना, हो ही रहा है वेलोसिटी चेंज, करेक्ट? तो इस केस में वी डायरेक्टली चेक what is the total change in velocity and what is the total amount of time. तो नोटेशन वापस से मोर और लेस सेम है, सिर्फ वहां पे v एवरेज था, यहाँ पे a एवरेज है। v एवरेज था, याद होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v होता है v2 माइनस v1 और ये होता है t2 माइनस t1, वेक्टर 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 एंड राइट। Then last is what? Last is instantaneous acceleration. Same definition. It is the acceleration of the particle at a given instant of time. So it is the acceleration of a particle at a given instant of time. At a given instant of time. और नोटेशन वाइज सेम, इंस्टेंटेनियस में आप एवीजी नहीं लिखते हो, एवरेज नहीं लिखते हो, डेल्टा की जगह क्या लिखते हो? डी, तो डीवी बाय dt, या फिर इन टर्म्स ऑफ लिमिट ऑफ डेल्टा v बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, राइट? So this is the notation of कौन सा? Instantaneous acceleration. So far what have you understood from motion overall? 1D motion की बात है, अभी 2D तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, करेंगे। So what we have understood, particle is changing its position. If the particle changes its position by equal amounts in equal intervals of time, then it is said to have uniform velocity. And if the particle changes its velocity by equal amounts in equal intervals of time, then it is said to have uniform acceleration.
तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट समरी था। तो यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब थोड़ा सा जो हमको आगे जाके कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन इज मोशन इन 2 डायमेंशन। व्हाई 2 डायमेंशन? बिकॉज दैट टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। can you prove this, that circular motion is a 2 dimensional motion? ऐसा मत बोलना दिखता है हमको, दिखता है। आई एम आस्किंग यू टू प्रूव दिस मैथमेटिकली। सर दिख तो रहा है वो 2D मोशन, मुझे पता है वो 2D मोशन है। सर्कल एज अ एरिया, वेरी गुड। एनी अनदर एग्जांपल? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? x square plus y square equal to r square. X is one coordinate, y is another coordinate. तो motion is in xy plane. अगर वही मोशन एक्स जेड प्लेन में होता तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर वही मोशन वाई जेड प्लेन में होता तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में 2 कोऑर्डिनेट्स आने का मतलब ही ये है, वो है मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन। एनीवेज, अब ऐसा है, वेलोसिटी का चेंज विद टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी में चेंज लाएंगे कैसे? तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन वेलोसिटी। हाउ 2 डिफरेंट वेज? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीजें होती है, क्या और क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब तो 2 केसेस हो गए। एक केस में आपने वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया without change in direction. For example, particle was moving along east, particle is still moving along east. Particle was moving along east with a speed of 2 meter per second. Now the same particle is still moving along east with a speed of 5 meter per second. Right? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन होना, राइट? या फिर आपने क्या किया, आपने सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, पहले वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, अब पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ वेस्ट। अब पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ वेस्ट, पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, particle velocity at 2 meter per second along southeast, and then east, and then also northeast, right? Good. So in all these cases only direction of the velocity has changed, magnitude is same, लेकिन velocity तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ फिर भी चेंज होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज होगा विद टाइम तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेलोसिटी से डिराइव क्वांटिटी है ना, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है जी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेलोसिटी एंड टाइम, व्हिच मींस इफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हिच आल्सो मींस कि वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन का जो चेंज है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होगा, राइट? तो अब देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। पहले तो समझ लो, एक टेबल ही बना देता हूं मैं, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। उसको पहले टाइटल दे देते हैं, पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज करने के 2 पॉसिबल वेज है। पहला है जस्ट चेंज द मैग्नीट्यूड, एंड अदर इज चेंज द डायरेक्शन, और तीसरा है चेंज बोथ, दोनों चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। So let us make a table. Now important, this is really important, क्योंकि ये जो 2D मोशन हम स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन जिसका आधा पार्ट 11th में है और आधा पार्ट 12th में है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझेगा तो 12th का आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ये ध्यान में नहीं
तो फिर वो भूल जाना। और रिमेंबर, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चैप्टर में आता है, वेक्टर्स में भी आता है और यहाँ पे भी आता है और रोटेशनल डायनामिक्स में भी आता है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जेईई नीट में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रीमली वेल। सबसे पहले possible ways of changing velocity. If only magnitude changes, किसका magnitude changes? Velocity का, ऊपर ही लिख दिया ना, velocity का change है। If only direction changes, and then if both changes, if both magnitude and direction changes, पहला केस, जब पार्टिकल का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। एग्जाम्पल अभी हमने लिखा A इक्वल टू V2 बार माइनस V1 बार अपॉन T2 माइनस T1, अभी लिखा ना, अभी जस्ट नाउ वी हैव रिटन इट, करेक्ट। देन सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब टाइम इनिशियल इज 0। अगली बार तो ध्यान रखना, जब भी मैंने इनिशियल वर्ड यूज किया, अब इनिशियल में जो पहला टाइम इंस्टेंट होता है उसको 0 ही मान लेते हैं हम लोग। क्यों? सिंपल लॉजिक। मैं अगर मोशन अभी से मेजर करूंगा, फॉर एग्जांपल इट इज 8:11 नाउ, मैंने मोशन का मेजरमेंट अभी स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं था कि मोशन नहीं था। हाँ, फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ रोड, एक गाड़ी जा रहा है और सडनली मेरा ध्यान गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने देखा तब मूव होना स्टार्ट हुआ, पहले भी हो रहा था। मैंने कब मेजरमेंट स्टार्ट किया? जब मैंने देखा, द फर्स्ट इंस्टेंट इज ऑब्जर्वेशन। अभी ये 8:12 हो गए, फिर मैंने 3 मिनट के बाद वापस से उसी ऑब्जेक्ट को देखा, सेम पार्टिकल, सेम ऑब्जेक्ट, सेम कार, सेम व्हीकल, मतलब 8:15, कितना टाइम? अब सपोज मेरे पास स्टॉप क्लॉक था, जब पहली बार मैंने ऑब्जर्व किया, स्टॉप क्लॉक को चालू कर दिया। स्टॉप क्लॉक कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, राइट। और मैंने जब 3 मिनट के बाद देखा था, तो स्टॉप क्लॉक में कितना टाइम? 3 मिनट। इसमें कितना टाइम? 3 मिनट। तो पहले टाइम इंस्टेंस को हमेशा क्या ले लेंगे? 0। तो द फर्स्ट टाइम दैट यू मेक एन ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज 0, करेक्ट। तो याद रखना, ये हम लोग 0 ही मान लेते हैं, T1 इज टेकन टू बी 0। एग्जाम्पल नाउ, 2 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड था इनिशियल, मतलब T इक्वल टू 0 पे। 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है आफ्टर सम टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आई डोंट केयर, लेकिन फाइनल स्पीड V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब न्यूमरेटर क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो मैंने पहले भी बताया था, A वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ B वेक्टर, मतलब क्या? बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका है? एक्सेलरेशन का। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। और उल्टा सोचो, अभी गाड़ी को ब्रेक मार दिया हमने, सामने स्पीड ब्रेकर था, ब्रेक मारना पड़ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, और बाद में हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन इज स्टिल द सेम एंड इनिशियल वाज 5। व्हाट इज फाइनल माइनस इनिशियल? माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 5, तो नेगेटिव आएगा कि नहीं? नेगेटिव। डू यू रिमेंबर A बार इक्वल टू माइनस n B बार का मतलब क्या था? अपोजिट डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, when there is change only in magnitude of velocity,
acceleration is either parallel or anti-parallel. Acceleration is parallel or anti-parallel. किसको? To velocity. Right? Now clear? Parallel कब? जब final velocity is greater than initial. Anti-parallel कब? जब final velocity is less than initial. अब second case, when the velocity is changing only its direction. Best example. Have you seen something like this? What is this? Wow, very good. इसमें 3 hands होते हैं, मैं एक ही hand दिखा रहा हूँ. It has 3 hands. Minute hand, hour hand, second hand. अब जब ये hand, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे सेकेंड हैंड हो, चाहे आवर हैंड हो, जब ये मूव होता है, कौन सा मोशन है? सर्कुलर. इस केस में स्पीड पता है क्या होता है? कांस्टेंट. स्पीड इज कांस्टेंट. तो व्हाट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब ये घड़ी का काटा 12 पे था तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था टेंजेंट. तो सर्कुलर मोशन में याद रखना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है टेंजेंट. जब ये 3 पे आया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड बट स्पीड इज स्टिल सेम. जब ये 6 पे आया, तब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड बट स्पीड इज स्टिल द सेम. ये याद रखना. तो इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वेलोसिटी का डायरेक्शन है tangent at every point. But in such cases, the direction of acceleration is always towards the center of circle. So acceleration is always perpendicular to velocity. इस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि स्पीड हर जगह पे क्या था? सेम. और ये क्या है? सर्कुलर है. तो क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन दिस केस स्पीड इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. एंड अगर ऐसा है तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. और याद रखना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कहाँ था? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल. इस मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर. राइट? क्लियर यहाँ तक? तो दिस इज व्हाट यू हैव. तीसरा केस, दोनों ही चेंज हो गए. होता है ना ऐसा? बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ. बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट इन रियल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक थ्रेड है. इस थ्रेड के नीचे मैंने एक बॉल को टाई कर दिया. अब इसको मैं वर्टिकली घुमा रहा हूं. यू नो, वर्टिकल मोशन इज अ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. राइट? जतरा में चेंडू लेके करते हैं ना ऐसा. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू फिजिक्स, दैट इज व्हाई फिजिक्स इज इजी. अब मोटिवेशन और इंटरेस्ट तो आपको लाना पड़ेगा. एज अ टीचर माय पार्ट इज जस्ट टू टेल यू रियल लाइफ एग्जांपल्स. तो उसमें आप जब सर्कुलर मोशन करवाते हो उसको, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. ऑब्जेक्ट जब नीचे था तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टेंस कम था. अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना मतलब स्पीड कम होना. आप भी जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट नीचे जाते वक्त फास्ट. करेक्ट? तो ये भी वैसा ही है, ये भी ऐसा ही है. जब ये ऊपर जा रहा है स्पीड कम एंड ऑलमोस्ट जीरो. then it becomes rapid and then slows down and zero and it becomes rapid again. Good. तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. तो जब ऐसा होता है दोनों चेंज होते हैं,
तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक सेंट्रिपिटल कंपोनेंट। मतलब एक एक कंपोनेंट होता है पैरेलल टू द वेलोसिटी और एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब एक होता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर विच इज 90 डिग्री टू वेलोसिटी, एक होता है टेंजेंशियल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अगली बार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुनोगे तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज A is perpendicular to V. Only acceleration has one component and that is also towards center. अगर कोई केस सुना जिसमें सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ऐसा कोई मोशन सुना जिसमें दोनों ही चेंज होता है तो दो कंपोनेंट, राइट, दो कंपोनेंट रिमेंबर। अब खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन। सी द थिंग इज, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन के आगे दो कंपोनेंट्स, एक आ गया टुवर्ड्स सेंटर, इसको बोलते हैं या तो रेडियल कंपोनेंट या इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल कंपोनेंट। एक हो गया टैंजेंट के अलोंग, इज कॉल्ड एज टैंजेंशियल कंपोनेंट। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है तो ये दोनों वेक्टर्स है विच आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट इज समवेयर ओवर हियर। तो रिजल्टेंट ये ना टेंजेंशियल है ना ये सेंट्रिपिटल है, इट इज इन बिटवीन समवेयर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ये सारा का सारा हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी मोशन ग्राफिकली, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। अब जब मैंने इसलिए पहले नहीं बता दिया, मोशन मतलब दो चीजें, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्राफ भी दो टाइप के बनेंगे, एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, करेक्ट। तो मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन विद टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ग्राफ भी दो होंगे, एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ। और वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट डिटेल्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, मुझे एक्सपेक्टेड आपसे ये है कि आपको कम से कम आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है, बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग पता है, डेरिवेटिव जो मैंने ही सिखाया था वो याद है? याद है? नहीं तो डेरिवेटिव भी याद नहीं तो यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहाँ से क्या आया। लुक, अब इमेजिन, मैं पहले बेसिक ग्राफ बता देता हूँ आपको। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप x की वैल्यू के साथ y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्लॉट करते हो, तो पॉइंट्स मिलते हैं कुछ, तो उस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो। सपोज एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ये था ए पॉइंट, ए पॉइंट को करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है x1 और y की वैल्यू है y1। यहाँ पे है बी पॉइंट, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x2 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज y2। So this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. This point over here is B point, let us say. Then I hope and I am sure, not only hope but I am sure, आपको पता होगा यहाँ पे x1 लिखना मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना है, ये कितना है, वेरी गुड। तो अब एज यू नो बेसिक्स, अच्छी बात है, ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है। इफ आई ड्रॉ दिस लाइन तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। लेट अस से दिस इज द एंगल थीटा made by the line, straight line,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर करते हो, तो एंगल इज ऑलवेज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। गुड, आई विल नॉट गो इनटू फर्दर मैथमेटिक्स, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फिर मैं पूछूंगा बताओ कितने फॉर्म्स होते हैं, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। तो उसमें हम जाएंगे नहीं, वो आप बाद में सीख ही लोगे। बट नाउ फॉर द टाइम बीइंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्लोप को डिनोट करते हो m से n। व्हाट इज स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? But if you look tan theta from this graph, what is tan theta? Opposite side upon adjacent side. Opposite side is y2 minus and adjacent is x2 minus। पर यही तो स्लोप था, मतलब स्लोप कौन है? tan theta। अब एक छोटा सा काम करेंगे, हमको पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, तो हम x की जगह पे हमेशा x एक्सिस पे हमेशा हम टाइम एक्सिस प्लॉट करेंगे, राइट? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो टाइम कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बाय डिफॉल्ट x एक्सिस इज रिजर्व फॉर टाइम। तो ये जो हमने यहाँ पे x2 लिखा था वो हो गया सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, और यहाँ जो x1 लिखा था वो हो गया t1, तो ये हो गया t2 माइनस t1। अगर ये t2 माइनस t1 है तो ये भी t2 माइनस t1 है, दिस इज ऑल्सो t2 माइनस t1। अब अगर मोशन अलोंग y एक्सिस है तो ग्राफ सही है, क्योंकि पार्टिकल अगर 1D मोशन में है तो तीन अलग अलग डायरेक्शन हो सकते हैं मोशन के, एक x, एक y, एक z। इफ द मोशन इज अलोंग y एक्सिस तो y एक्सिस को y एक्सिस रहने दो, और अगर मोशन इज अलोंग x एक्सिस, if the motion is along x axis तो ये हो जाएगा x1 पोजीशन एट टाइम t1, ये हो जाएगा x2 पोजीशन एट टाइम t2, तो ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1। इन जनरल हम यहाँ पे ना x लिखते हैं, ना y लिखते हैं, ना z लिखते हैं, हम लिखते हैं p स्टैंड फॉर पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप था y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे कौन है? x2 माइनस x1, और नीचे कौन है? k2 माइनस k1। बट डू यू रिमेम्बर दिस इज व्हाट? वेलोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। दैट इज क्लियर? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा, राइट? तो रिमेंबर, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का सिर्फ आपको निकालना है स्लोप, और आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। लेकिन स्लोप क्या था? क्या था स्लोप? tan थीटा। एक्सीलेंट, गुड, tan थीटा। अब मैं ये सब आपको लिख के भी दूंगा प्रॉपरली, बट टुडे वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, the idea behind it. So let us take one position axis, another time axis, and now if I tell you, इसका मतलब बताओ, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि एंगल कितना है? जीरो। व्हाट इज tan जीरो? जीरो। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज जीरो, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो इफ आई टेल यू, मुझे आपका ग्राफ बताओ बिटवीन 725 टू 835 मोर और लेस। ये पहला टाइम इंस्टेंट, दिस इज फर्स्ट टाइम इंस्टेंट, 7:25 AM, this is the time when you enter this class. Approximately this is second time instance when you leave the class. This is your graph between these two time instances. इससे पहले इसके बाद में I don't know and I don't care, because I am an observer who is observing you only between these two time instances.
तो मोशन का मजा ही तो ये है हमको, जब तक मैं देख रहा हूँ तब तक आई केयर, उसके बाद तो ठीक है तुम्हारी मर्जी जो करना है करो, राइट, गुड। देन और one more important thing is, what have you learned from this? Slope of a line parallel to x-axis, in this case time axis, is 0. Slope of a line parallel to time axis मतलब x-axis is 0. ये स्लोप 0 है क्योंकि एंगल कितना है 0। फिर ये क्या है, व्हाट इज स्लोप? इनफाइनाइट, मतलब जैसे आप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से पैरेलल टू द वाई एक्सिस जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप 0 लाइन, स्लोप इंफिनिटी लाइन, इन बिटवीन स्लोप इज पॉजिटिव। इसको बोलते हैं अप द हिल। अप द हिल स्लोप इज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डाउन द हिल नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। याद रखना है, काम में आएगा आगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, आपने मुझे पहला बता दिया, आपने बताया ये क्या था, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। अब इसका भी मतलब बता दो। बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विदाउट चेंज इन टाइम। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है हमको? वेलोसिटी। व्हाट इज स्लोप हियर? इनफिनाइट, मतलब वेलोसिटी इज इनफिनाइट, वेलोसिटी इज इंफिनिटी, मतलब द पार्टिकल इज मूविंग विद इनफिनाइट स्पीड, मतलब टाइम इज नॉट चेंजिंग बट द स्लोप, बट द पोजीशन इज चेंजिंग। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कैन देयर बी एन ऑब्जेक्ट जो एक ही टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग पोजीशन पे हो? नहीं हो सकता। तो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस, सो दिस केस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हाउ अबाउट दिस? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एंगल कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है तो टैन ऑफ एंगल भी कांस्टेंट होगा, और टैन ऑफ एंगल मतलब देता है स्लोप, और स्लोप देता है हमको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है a इज 0, एक्सप्रेशन इज 0। अब ये पहले टाइप का ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ। This is a position time graph of a particle moving with constant velocity. दूसरे टाइप का ग्राफ कौन सा बताया था मैंने आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ पोजीशन टाइम पे ऐसा दिखता है, और वेलोसिटी टाइम पे वही ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि इसका मतलब क्या? इसका मतलब विथ टाइम, अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो एक कितना है? 0 है। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ से थीटा कांस्टेंट, मतलब tan थीटा कांस्टेंट, मतलब स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कौन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज सेम। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दे आर सेम, दे आर सेम। तो कभी कभी जेईई न्यूज में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, आपको देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द सेम मोशन, और वो 4 ग्राफ दिए होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब पोजीशन टाइम से आपको जाना है वेलोसिटी टाइम में। यहाँ तक क्लियर? तो बाकी के ग्राफ और उसका डिटेल इंटरप्रिटेशन ये हम लोग करेंगे अगले क्लास में।